वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे इज 25 मई 2023, डे थर्सडे का है। और चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के साथ। विच स्टेट लॉन्च लाडली बहना योजना? द आंसर इज मध्य प्रदेश। नंबर 2 इज इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री? द आंसर इज म्यांमार। India behind Operation Karuna to assist Myanmar. India has taken an initiative to aid those affected by Cyclone Mocha in Myanmar by launching Operation Karuna. On May 18th, 3 ships, namely Indian naval ships Shivalik, Kamorta and Savitri, arrived in Yangon with emergency relief materials such as food supplies, tents, essential medicines, water pumps, portable generators, clothes and hygiene items. Moving to number 3, Garuna Aerospace has collaborated with which company to manufacture 1 lakh made in India drones? The answer is Nani Aerospace. Number 4 is, who authored the book titled Girds Amid Bloodbath? The Anshuman Gaikwad narrative. The answer is Aditya Bhushan. Number 5 is, which company will be the new kit sponsor of Indian cricket team? The answer is Adidas. Number 6 is, Credit Suisse Group AG to be merged with which company? The answer is UBS Group AG. Number 7 is, which Indian archer defeated world's number 1 to win his maiden archery World Cup gold? Answer is Prathamesh Javkar. Number 8 is, which country's company creates world's most expensive ice cream, cost more than rupees 5 lakh per serving? The answer is Japan. Number 9 is, which state government brings a dress code for teachers in all the state-run schools? The answer is Assam. Number 10 is, name the Kerala-based startup whose founders have featured in Forbes 30 under 30 Asia list. The answer is Gen Robotics. Number 11 is, who has recorded his best ever bowling figures in IPL? The answer is Naveen Ul Haq. And the last current affair of the day is, name the most miserable nation as per Hankey's annual misery index, HAMI. The answer is Zimbabwe. इस मिजरी इंडेक्स के अंतर ये बताया जाता है कि किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अर्लियर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट को मिलाकर ये कंडीशन निकालते थे, या हैंकीज़ इंडेक्स के अंदर ये पता करते थे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अलावा यहाँ पर एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप है किसके बीच में? मिजरी इंडेक्स और इकोनॉमिक कंडीशन के बीच में, कि जितना हाई ये इंडेक्स होगा एक उतनी ही इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो ख़राब है, और जितना कम ये मिजरी इंडेक्स होगा उतनी ही जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ करंट अफेयर। अब हम ज़रा आज बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। सो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी वो 1938 में सेटअप हुई। It was Indian National Congress who formed the committee. Subhash Chandra Bose was Congress president and was chaired by Jawaharlal Nehru. Their aim was to release detailed blueprint of an economic plan for independent India. 1944 में आपका बॉम्बे प्लान आया। Industrialists of Bombay including Mr. J.R.D. Tata, G.D. Birla, Purushottam Das Thakur Das, Lala Shriram, Kasturbai Lal Bhai, A.D. Shroff, Ardeshir Dalal एंड जॉन मथाई प्रिपेयर्ड दिस प्लान। इतने सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर ये बॉम्बे प्लान बनाया। इट वॉज नेग्लेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड बाय द बिजनेस क्लास ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसके बाद आपका 1945 में आया पीपल्स प्लान, जो कि लेकर आए एम.एन. रॉय। दिस प्लान गेव ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। ये प्लान एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। दिस प्लान वॉज फॉर 10 ईयर्स। इट रिकमेंडेड नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। फिर आया आपका 1944 में गांधीयन प्लान। यहाँ पर बॉम्बे प्लान के बाद ही गांधीयन प्लान आया था, ये थोड़ा सा अप डाउन हो गया है। बाय श्रीमन नारायण हु वॉज प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज। प्लान एम्फेसाइज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन विथ प्राइमेसी टू रूरल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग कॉटेज इंडस्ट्री। जो गांधीयन प्लान था ये कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। 1950 में आपका आया सर्वोदय प्लान बाय जयप्रकाश नारायण, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान से इंस्पायर होकर ये आया था सर्वोदय प्लान। वेल एज सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोब भवे, इट एम्फेसाइज ऑन स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एज वेल। ये स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पे एम्फेसिस कर रहा था। प्लान ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन लैंड रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। फिर 1950 में आपका आया प्लानिंग कमीशन, set up by a resolution with Jawaharlal Nehru as the first chairman of planning commission। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है जैसे नीति। नाउ विल टॉक अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये आया था आपका 1951 से 56 के बीच में एंड इट वाज बेस्ड ऑन हैरिट डोमार मॉडल। इसका मेन फोकस था, इट्स मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स।
टारगेटेड ग्रोथ रेट इसका रहा था 2.1% एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट 3.6% मोर देन इट्स टारगेट। तो मतलब जो टारगेट ही गया था इन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे 2.1, उससे काफ़ी ज़्यादा अचीव किया था 3.6%। मूविंग टू सेकेंड 5 ईयर प्लान, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया आपका वो 56 से 61 के बीच में आया। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद अ फोकस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स। अब इस पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। टारगेटेड ग्रोथ रेट इसका 7.5% रखा गया, जिसमें से अचीव हुआ 4.1% एंड इट वॉज बेस्ड ऑन पीसी मैलोनोबिस मॉडल। अगर हम बात करें थर्ड 5 ईयर प्लान की तो इट वॉज बिटवीन 61 to 66 एंड ऑल्सो कॉल्ड गैडगिल योजना। The main target of this plan was to make the economy independent and to reach the self-active position of takeoff. For the first time, considered the aim of balanced regional development. Third 5 year plan. इसके बाद तो ये तीनों 5 ईयर प्लान के बाद एक आया प्लान हॉलीडे दैट वाज बिटवीन 66 to 69। इसने फोकस किया था सेल्फ रिलायंस पे और इसके अलावा ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान्स वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स एंड द इंडस्ट्री सेक्टर। मतलब जो स्टार्टिंग 3 प्लान्स में हमने जो भी ऑब्जेक्टिव रखे उन पे ही ज़्यादा फोकस करने के लिए ये प्लान हॉलीडे लिया गया था। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अशर्ड इन दिस पीरियड दैट इज़ बिटवीन 66 to 67। इसी पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान था आपका 69 to 74 के बीच में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। टारगेटेड ग्रोथ वाज 5.7 एंड जो अचीव किया था वो 3.3 किया था। अभी भी हम टारगेटेड ग्रोथ के ऊपर नहीं गए थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज बिटवीन 74 to 79 एंड इट्स फोकस वाज ऑन पावर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। भाई गरीबी हटाओ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। एंड इट्स टारगेटेड ग्रोथ रेट वाज 4.4% एंड हमने अचीव की थी 4.8% एंड दिस प्लान वाज टर्मिनेटेड इन 1978 और एक रोलिंग प्लान ले आया गया था 78 to 80 के बीच में एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था इसके बाद एक रोलिंग प्लान आ गया और इस प्लान में हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान को ही कंटिन्यू किया था। 6 5 ईयर प्लान आपका 80 से 85 के बीच में आया। टारगेटेड ग्रोथ वाज 5.2 एंड अचीव ग्रोथ वाज 5.7। ऑब्जेक्टिव था पावर्टी इरेडिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पावर्टी गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। Seventh 5 year plan was between 85 to 90. Objective was emphasized on rapid food grain production, increase employment creation and productivity in general. मतलब ज़्यादा रोज़गार हो, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है एंड सो ऑन। टारगेटेड ग्रोथ रेट वॉज 5% एंड अचीव ग्रोथ रेट वॉज 6%। सो प्लान वॉज सक्सेसफुल। मतलब जहाँ पर आप देखिएगा जहाँ पर हम ग्रोथ रेट जो हमारे अचीव ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो रहा है डैट मीन्स हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, और जहाँ पर हम ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पा रहे वहाँ हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 2 एनुअल प्लान्स 1990 से 91 और 91 से 92। 8th 5 year plan 1990 to 95 could not take off due to political situation of the country, the fiscal imbalances and the BOP crisis, that is balance of payment crisis। अच्छा 8th 5 year plan की बात करें that was between 92 to 97। targeted growth was 5.6 and achieved growth was 6.8। ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। अब देखो जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात आएगी तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे, लाइक राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पावर्टी का कम होना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करना एंड सो ऑन। एडॉप्शन of indicative planning in totality. Narasimha Rao government launched the new economic policies of India, Rao Manmohan model LPG, that is liberalization, privatization and globalization। यहीं पर आ गई थी LPG पॉलिसी। 9th 5 year plan की बात करेंगे तो इट वॉज बिटवीन 97 to 2002। टारगेटेड ग्रोथ वॉज 7% एंड अचीव वॉज 5.6%। दैट मीन्स की प्लान सक्सेसफुल नहीं था। ऑब्जेक्टिव था इसका ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा 9th 5 year प्लान आपका 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे आया था। बात करें 10th 5 year प्लान की, इट वॉज बिटवीन 2002 to 2007। ऑब्जेक्टिव वॉज एम्स टू डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years। अच्छा पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम होता ये है कि किसी भी नेशन में या इकोनॉमी में या कंट्री में पर पर्सन की इनकम क्या है हम उस बेसिस पे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। ये बहुत जनरल सी बात है जो हम क्लास 9-10 की इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। Targeted growth was 8%. For the first time, the plan went to set the monitorable targets for 11
indicators of development for the center as well as for the states. 11th 5-year plan की बात करें तो it was between 2007 to 2012 and objective of faster and inclusive growth. obvious सी बात है, जैसे जैसे हम प्लानिंग पे आगे बढ़ते गए हमारे तरीके चेंज होते गए, हमने मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाने स्टार्ट किए. बात करें 12th 5-year प्लान की तो इट वॉज बिटवीन 2012 टू 2017 और इसी बीच में 2015 में नीति आयोग आ गया था. जैसे ही ये 5-year प्लान खत्म हुआ है 12th 5-year प्लान, तो इसे रिप्लेस किया आपके नीति आयोग ने, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसके बारे में भी अभी बता दे रही हूँ. सो ऑब्जेक्टिव 12th 5-year प्लान का था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट टारगेट इज़ 9%. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप रिसोर्सेज को इस हिसाब से इस्तेमाल करिए कि आपकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज ख़त्म ना हो. यही कहलाता है इन द सिंपल लैंग्वेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015 बाय एनडीए गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विच फॉलोड अ टॉप डाउन मॉडल. The Niti Aayog, that is National Institution for Transforming India Council, comprises of all state chief ministers along with the chief ministers of Delhi and Puducherry, lieutenant governments of all union territories and a vice chairman nominated by the Prime Minister. In addition, temporary members are selected from leading universities and research institutions. Those members include a chief executive officer, 4 ex-official members and 3 part-time members. So this is all about today. थोड़ा सा वीडियो अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा.